नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, today we will deal with the topic dimensions of physical quantities. So dimension of a physical quantity is defined as power or exponents to which base quantities are raised to represent the quantity. Usually dimensions are represented by square bracket around the quantities. So dimensions of a physical quantity are powers to which base quantities are raised to represent the quantity. So here are 7 base quantities which are represented in bracket in form of dimensions. These quantities are length, which is usually denoted by in bracket L, capital L, mass in bracket capital M, time in bracket capital T, electric current in bracket capital A, thermodynamic temperature in bracket capital K, luminous intensity in bracket small c small d, and amount of substance. MOL. So these quantities are represented in bracket to represent as dimension. So now let us take an example. If we take the example of volume, suppose for example we have to find out the dimension of volume. So volume equal to length into breadth into height. So these three are lengths. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में ही लेंथ ही होता है. तो इस केस में अगर हम इनके डायमेंशंस को लिखें तो L इंटू एल इंटू एल are simply L to the power 3. So the dimension of volume is L to the power 3. सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज हम डायमेंशन कैलकुलेट करना है फोर्स का. सो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मास इंटू एक्सीलरेशन. नाउ dimension of mass is m and acceleration is meter per second square or length upon time square.
So this will be length upon time square, or this can be written as m l, डिनोमिनेटर टर्म है टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस टू. सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी टू द पावर माइनस टू. The dimensional formula and dimensional equations. Dimensional equation. किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में दिखाया है. जैसे कि अगर हम कहें कि वॉल्यूम के केस में जो हमारा फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला, दिस विल बी m टू द पावर 0 L टू द पावर 3 T टू द पावर 0 इन ब्रैकेट. ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया. और अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं तो सिंपली हम इसे इन ब्रैकेट v इक्वल टू m टू द पावर 0 L टू द पावर 3 T टू द पावर 0 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज हमने कोई और क्वांटिटी ले ली, स्पीड. सपोज हमने ले लिया स्पीड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज लेंथ. लेंथ अपॉन टाइम. सो L by T or L to the power L T to the power minus 1 m to the power 0. So m to the power 0 L T to the power minus 1 is the dimensional formula for speed. And dimensional equations will be written as v equal to m to the power 0 L to the power 1 and T to the power minus 1. Similarly, if we are taking another quantity, suppose mass density, its dimensional formula will be per meter cube. So kilogram per meter cube. So mass L to the power minus 3 T to the power 0. This will be the dimensional formula. And dimensional equation will be rho equal to m L to the power minus 3 T to the power 0. चलिए, शायद यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है स्पीड और मास डेंसिटी में, तो यहाँ से फिर मैं इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कंफर्म कर देता हूँ. स्पीड आपने पढ़ा होगा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मीन्स लेंथ एंड टाइम मीन्स टी. तो इसे हम L T टू द पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो T टू द पावर माइनस 1, L T टू द पावर माइनस 1 हो गया. सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, m टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू L टू द T टू द पावर माइनस 1. ऐसे ही मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं इसे. मास m एंड वॉल्यूम L टू द पावर 3 या m L टू द पावर माइनस 3. यहाँ से ये क्लियर हो गया
एम एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 0। जो भी क्वांटिटी इन क्वांटिटीज़ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो भी डायमेंशनल क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में सपोज जैसे एम एल तो है लेकिन टी यहाँ पर कहीं नहीं आया तो टी टू द पावर 0 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर स्पीड में एल टू द पावर -1, यहाँ एम नहीं आया, एम टू द पावर 0 कर देंगे। इस तरह से हम फार्मूला और इक्वेशन दोनों लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला और इक्वेशन लिख सकते हैं। We will discuss about rules for dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। सपोज अगर किसी केस में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ या डायमेंशंस को ऐड करना है तो केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस सेम हो, जिनके डायमेंशंस सेम। सो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ can be added or subtracted which have same dimension. Which have same dimension. इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी बोलते हैं, या सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलेंगे। Second, dimensions can be multiplied and cancelled like normal algebraic method. थर्ड रूल है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस के जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। सो इन मैथमेटिकल इक्वेशंस द dimension of left hand side must be equal to the dimension of right hand side. नेक्स्ट रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी स्पेशल फंक्शंस होंगे जैसे कि हमारा ट्राइग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम एंड रेशियो हो गया सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ये सब डायमेंशन लेस होंगे, ये सारे डायमेंशन लेस माने जाएंगे। सो आर्गुमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस, like logarithmic, trigonometric and similar physical quantities are
dimensionless. ये सारे रूल्स हम अप्लाई करेंगे जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस की. We will discuss some applications of dimension analysis. Applications of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस को किसी भी इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी यूज करते हैं. कंसिस्टेंसी मीन्स वेदर द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड is equal to the dimension of left hand side. So the equation is said to be consistent if and only if the dimensions of both the sides are same. So first application is to check the consistency of mathematical equations. So let us take an example of v equal to u plus at. We have to check the mathematical consistency of this equation. This is the first equation of motion, v equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is time, a is acceleration and t is time. So now write down the dimensions of both sides. So first dimension of left hand side, this is velocity, and velocity is displacement per unit time. Displacement means length and per unit time means t to the power minus 1. So this is L to t to the power minus 1. Or further it can be written as m to the power 0 L t to the power minus 1. And now check the dimension of right hand side. So here are two terms, u plus at. So u and at are added only if they have same dimensions. So now check the dimensions of u plus at. This will be equal to dimensions of u. U is velocity, so m to the power 0 L t to the power minus 1, and plus dimension of acceleration. This is length upon time square, L t to the power minus 2, L t to the power minus 2, and this one is multiplied by time means t. So here t to the power 1 and t to the power minus 2. So this will becomes m to the power 0 L t to the power minus 1 plus m to the power 0 L t to the power minus 1. Both the dimensions are same. Dimension of both the terms are same. So again it will reduce to m to the power 0 L t to the power minus 1. So here the dimension of right hand side is equal to the dimension of left hand side. So the equation is consistent. Equation is consistent.
Now the other application is deducing relation among physical quantities. So second application is deducing relation among physical quantities. डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी निकाल सकते हैं। करना क्या है कि दोनों साइड के डायमेंशंस को नोट करेंगे और पावर्स को कंपेयर कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों दी गई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल सेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। T इक्वल टू K इंटू L टू द पावर X G टू द पावर Y एंड M टू द पावर Z। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया। तो ये जो T है हमारा टाइम पीरियड है, L हमने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और M मास है। ये जो इक्वेशन है ये सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन है। Symbols have usual meanings. चलिए अब हम ये टाइम पीरियड, ये तो हमें पता चल गया कि ये टाइम पीरियड है, ये लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये मास है। अगर टाइम पीरियड रिलेटेड है किस तरह से, के कोई कांस्टेंट है, L टू द पावर X G टू द पावर Y M टू द पावर Z, तो हमें कैलकुलेट करना है X Y और Z की वैल्यूज को। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट X Y एंड Z एंड फाइंड द रिलेशन। चलिए ये हमें X Y Z की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और इन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को पहले लिख देंगे। सो इन डायमेंशनल फॉर्म टाइम, सो T टू द पावर 1 एंड M टू द पावर 0 L टू द पावर 0। K कांस्टेंट है, तो अभी हमें पता नहीं है कि इसके की वैल्यू क्या है। बाकी क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हम नोट करते चले जाते हैं। L लेंथ है, सो दिस विल बी L टू द पावर 1 टू द पावर X। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, so length upon time square, so L T to the power -2 to the power Y and थर्ड जो मास है दिस विल बी M to the power Z। या इसे थोड़ा सा और हम शॉर्ट कर लें, इसे लिख सकते हैं हम M टू द पावर Z L टू द पावर 1 यहाँ से मिलेगा और L टू द पावर X एंड L टू द पावर Y।
So L to the power x plus y, बाकी t to the power minus 2y. अब हम दोनों साइड के डायमेंशंस के पावर्स को कंपेयर कर लेंगे. Comparing powers of both sides of the same dimension. सेम डायमेंशन. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड माइनस 2y इक्वल टू 1. या यहाँ से ये कह लीजिए कि y इक्वल टू -1/2. यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू पुट करें, x माइनस हाफ इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ, तो हमें तीनों वैल्यूज यहाँ से मिल गई. x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -1/2 एंड z इक्वल टू 0. अब ये जो वैल्यूज हमें मिली, इसको हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे. देयरफॉर द ओरिजिनल इक्वेशन इज t इक्वल टू k x l to the power x means l to the power half and g to the power y means g to the power minus half and m to the power 0. m to the power 0 means 1. This can be written as k l by g to the power half. Simply it can be written as t equal to k root l by g. Power half means under root. So this is the original equation which we have to derive. So going in this way, we can deducing relation among physical quantities also using dimensional formula. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें. साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है. अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें. प्लीज वीडियो देखें.